گی، وہ کہیں گے کیوں نہیں موت آئے گی؟ فرشتہ کہے گا دیکھو جس موت سے تم بھاگا کرتے تھے اس موت کو دمبے کی شکل میں لایا گیا ہے، اب اس موت کو میں ذبح کر رہا ہوں، اس کو مار رہا ہوں، اس کو ختم کر رہا ہوں، اب موت ہی نہیں رہے گی، تمہیں موت کہاں سے آئے گی؟ اس وجہ سے جیا بالموت، جب موت کو لایا جائے گا دمبے کی شکل میں اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا، جنتی لوگ تو خوشی کے مارے اچھلیں گے، لیکن جہنمیوں کا حال بڑا برا ہوگا، وہ مارے غم کے ادھر سے ادھر بھاگیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن اس کی آواز کو کوئی سننے والا نہیں، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، کالا ہو یا گورا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو جو دنیا کے اندر آیا ہے اس کو اس دنیا سے جانا ہے، اور صرف جانا ہی نہیں ہے بلکہ اگلے ٹکڑے میں یہ بھی بتا دیا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، آپ نے جیسا کیا ہے اسی کے مطابق آپ کو نامہ اعمال دیے جائیں۔ پھر اللہ کہتا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، نامہ اعمال جس کو جیسا ملا مل گیا، لیکن سوچنے والی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا میرے بندو سنو، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو جہنم سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، یا جو آدمی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت کے اندر چلا گیا، اللہ کہہ رہا میرے بندو فقد فاز، سب سے بڑا کامیاب آدمی وہی ہے، جنت میں چلا جانا اور جہنم سے بچ جانا سب سے بڑی کامیابی۔ آج دنیا کے اوپر غور و فکر کیا جائے، رہنے والوں کو دیکھا جائے، بلڈنگوں اور مکانات کو بنانے والوں کو دیکھا جائے، میرے بھائیوں وہ کامیابی اسی کو سمجھ رہے ہیں کہ ایک سے زیادہ بلڈنگ بنا لی جائے، ایک سے زیادہ گاڑیاں خرید لی جائے، ایک سے بہت سارے بینک بیلنس جمع کر لیے جائیں، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لیکن اللہ کہتا نہیں، سب سے بڑی کامیابی یہ کہ آدمی جہنم سے بچ جائے اور جنت کے اندر چلا جائے۔ کیوں یہ سب سے بڑی کامیابی؟ ہماری اور آپ کی نظر میں یہ دنیا بہت ویلو کی جگہ، ہم نے اس کو بڑا مقام دے رکھا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں یہ دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ بس اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان گاہ بنایا ہے، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی جگہ بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو آزمانا چاہتا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے نیک عمل کرنے والا کون ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے بل تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اے میرے بندو تم نے دنیا کو ترجیح دے رکھی ہے اور تم نے آخرت کو بھلا بیٹھا ہے، حالانکہ دنیا کے مقابلے میں آخرت بہت ہی زیادہ ہے۔ آخرت کی زندگی کبھی فانی ہونے والی نہیں ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اسی وجہ سے اس آخرت کی تیاری کرو، اس جنت میں جانے کی تیاری کرو، اس جہنم سے بچنے کی تیاری کرو جس جہنم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی صحابی سے فرمایا تھا اتقوا النار ولو بشق تمر، اے میرے صحابہ اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو اور اگر بچنا چاہتے ہو ایک کھجور کی گٹھلی کو بھی اللہ کے راہ میں خرچ کر کے اگر بچنا چاہتے ہو تو بچ لو، کیونکہ جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہے، اتنا جہنم اتنا ڈینجر ہے، اس کی آگ اتنی زبردست ہے، انہا ترمی بشرر کالقصر، قرآن کہتا ہے کہ جہنم کی جو چنگاریاں ہیں محل کی طرح ہے، چنگاریوں کو بتایا کہ کالقصر محل کی طرح ہے، اب اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے شعلے کیسے ہوں گے۔ انہا
तरमी बिशररिन कल कसर, फरमाया अल्लाह ताला कहता मेरे बंदो जहन्नम को तुमने मजाक समझ लिया है, जहन्नम को तुम सोच नहीं रहे हो। इन्नहा तरमी बिशररिन कल कसर, जहन्नम की चिंगारियां महल्लात की तरह हैं, महल्लों की तरह हैं। और जहन्नम का मंजर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इस अंदाज से बताया कि लोगों जहन्नम इतना डेंजर है, इतना डेंजर है कि अगर जहन्नम की चिंगारी भी दुनिया में फेंक दी जाए तो दुनिया तबाह हो बर्बाद होकर के रह जाए। कहीं आपने फरमाया अगर जहन्नम का एक डोल पीप दुनिया में फेंक दी जाए तो ये दुनिया सड़ जाएगी, दुनिया गल जाएगी, ये दुनिया तबाह हो बर्बाद होकर के जाएगी। कहीं आपने फरमाया लोगों जहन्नम से बचने की दुआएं मांगो, और आपने सहाबा को भी समझाते रहते थे और फरमाते रहते थे अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाब जहन्नम, ऐ मेरे सहाबा तुम ज्यादातर दुआएं मांगा करो कि अल्लाह मुझे अज़ाब जहन्नम से बचा ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जहन्नम से बचने की दुआएं मांगा करते थे और ये दुआ पढ़ा करते थे अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी को मालूम था, अल्लाह के नबी ने जहन्नम को भी देखा था और अल्लाह के नबी को मालूम था कि जहन्नम इतनी खतरनाक है, इतना डेंजर है, इतना डेंजर है। जो आदमी जहन्नम के अंदर चला गया मेरे भाइयों, उसको जो कपड़े पहनाए जाएंगे वो आग का कपड़ा होगा, जिस बिस्तर पे लिटाया जाएगा वो बिस्तर भी आग का, और जिस जो ओढ़ने के लिए जो उसको बिस्तर दिया जाएगा, बिछोना फर्श, सारी चीजें आग की होंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लोगों उस जहन्नम से बचने की कोशिश करो। और इतना आज बताइए हम और आप गौर कीजिए, आग हाथ में रख दिया जाए, कितने लोग हैं 10 मिनट रख लें हाथ में, आग के अंगारे को कौन रखना गवारा करेगा? आपको बोलेगा रख लो 10,000 रुपया दूंगा 10 मिनट के लिए, आप बोले पागल हो गया। दुनिया की आग को 10 मिनट रखने के लिए आदमी तैयार नहीं है, पैसा मिल रहा है। मेरे भाइयों आसमान छत भी आग की, फर्श भी आग का, और बिछोना और बिस्तर और ये कपड़ा ये सब के सब आग के। मेरे भाइयों कभी इस मंजर को देखो, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जब जहन्नम के अंदर लोग जाएंगे कुल्लमा नज़िदत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, इंसान की चमड़ियां जलेंगी। आई दुनिया के अंदर गलत काम करने वालों सुनो, जहन्नम को मजाक बनाने वालों सुनो। एक आदमी कहने लगा मौलवी साहब ये जहन्नम की बात जो कर रहे हैं आप, ये बताइए जो दुनिया की हीरोइन है लड़कियां ये कहाँ जाएंगी? हमने कहा कि अगर तौबा नहीं किया तो जहन्नम में जाएगी, अगर इसी हाल में ये मर गई तो जहन्नम में जाएंगी। तो फिर कहने लगता बताइए गौर कीजिए, कहता जन्नत में जाने के क्या फायदा, हीरोइन जब जहन्नम में रहेगी तो हम जन्नत में क्या करेंगे? मेरे भाइयों जरा गौर करो, जहन्नम को लोगों ने मजाक समझ लिया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है लोगों जब जहन्नम के अंदर जो जलने वाले इंसान होंगे, मुजरिमीन होंगे, जब उसके चमड़े जलने शुरू हो जाएंगे, जलने लगेंगे, इंसान अपने हाथों को जलता हुआ देखेगा, अपने पैरों को जलता हुआ देखेगा। इंसान सोचेगा ये हमारा पैर, ये हमारे हाथ, ये हमारे सर, ये सब कुछ जल के खत्म हो जाएंगे और मैं मर जाऊंगा। अल्लाह कहेगा नहीं, एक आवाज लगाने वाला फरिश्ता आवाज लगाएगा या अहलन नार, ऐ जहन्नमियों सुन लो, या अहलल जन्ना, ऐ जन्नतियों तुम भी सुन लो। जन्नती लोग आएंगे और जहन्नमी भी आएंगे। क्या बात है बोलो? वो फरिश्ता चीख करके कहेगा ला मौत, तुम्हें मौत नहीं आ सकती है, तुम्हें मौत नहीं आएगी। वो कहेंगे क्यों नहीं मौत आएगी? फरिश्ता कहेगा देखो जिस मौत से तुम भागा करते थे उस मौत को दुम्बे की शक्ल में लाया गया है, अब इस मौत को मैं ज़बह कर रहा हूँ, इसको मार रहा हूँ, इसको ख़त्म कर रहा हूँ, अब मौत ही नहीं रहेगी, तुम्हें मौत कहाँ से आएगी? इस वजह से जिया बिल मौत, जब मौत को लाया जाएगा दुम्बे की शक्ल में और उसको ज़बह कर दिया जाएगा,
जन्नती लोग तो खुशी के मारे उछलेंगे, लेकिन जहन्नमियों का हाल बड़ा बुरा होगा। वो मारे गम के इधर से उधर भागेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन उसकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं होगा। कुरान की आयतों को पढ़ते चले जाओ, 40 साल तक वो चीखेंगे पानी पानी पानी, लेकिन उसे 40 साल तक की कोई आवाज, उसके आवाज का कोई जवाब नहीं मिलेगा। 40 साल तक पुकारेंगे, वनादौ या मालिकुल यक़ज़ि अलैना रब्बुक, वो पुकारेंगे आई जहन्नम के दारोगा, हमारी बातें तो सुन लो, हमारी आवाज तो सुन लो, हमारी गुजारिश तो सुन लो, हमारी रिक्वेस्ट सुन लो। वनादौ या मालिकुल यक़ज़ि अलैना रब्बुक, अपने रब से कहो कि हमें मौत दे दे, हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, या पानी पिला दो। पानी के लिए तड़पेंगे जहन्नम में। जहन्नम का वो दारोगा जवाब देगा, क़ाल इन्नकुम माकिसून, ऐ जहन्नमियों, ऐ मुजरिमों, ऐ ज़िनाकारियों, ऐ शराब पीने वालों, ऐ नमाज के वक्त छोड़ करके अपने घरों में बैठने वालों, तुम तड़पते रहो, बिलखते रहो, तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, और अगर पानी मिले तो किस तरीके से, यगली दिमागुहु कगलिल हमीम। मेरे भाइयों, उसको पानी भी मिले और खाना भी मिलेगा, लेकिन कैसा, इन्न शजरत ज़क़ूम तामुल लसीन कल मुहल यगली फिल बुतून, खाना ऐसा, उसकी हथड़ियाँ बाहर निकल जाएंगी, पानी इतना गर्म कि पानी जैसी हलक के अंदर डाले, उसका हलक जल करके तबाह हो बर्बाद हो करके रह जाएगा। वो इंसान सोचेगा काश कि मैं पानी ही न पिया होता। मेरे भाइयों, जहन्नम की ये मनाजिर कुरान के अंदर मौजूद है। जहन्नम की ये पूरे के ये पूरे मनाजिर, जहन्नम के ये पूरा का पूरा मंजर कुरान करीम के अंदर भी मौजूद है, हदीसों के अंदर भी मौजूद है। लेकिन आज गौर करो, मुसलमानों को देखो, इनकी हालात को देखो, लगेगा इनको कयामत के ऊपर जर्रा बराबर यकीन नहीं है, आखिरत के ऊपर ईमान नहीं है, मरने के बाद के आने वाली जिंदगी की कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ दुनिया की तैयारी में लगा हुआ है। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था, अल कय्यिसु मन दाना नफ्सा व अमिल लिमा बादल मौत, सबसे अक्लमंद, सबसे चालाक आदमी वो है, सबसे चतुर आदमी वो है, सबसे होशियार आदमी वो है जो आने वाली जिंदगी की तैयारी करता हो, मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो, अपने कब्र की तैयारी कर रहा हो, अपने आखिरत की तैयारी कर रहा हो। अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बादल मौत, मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी कर रहा हो, सबसे ज्यादा अक्लमंद वो है। आज हम अक्लमंद उसको समझ रहे हैं जो खूब कमा रहा हो, जो खूब इंजॉय कर रहा हो, घर पे घर बना रहा हो, गाड़ियों पे गाड़ियां खरीद रहा हो, उसको हम और आपने अक्लमंद समझ लिया, होशियार समझ लिया है। लेकिन कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरे कायनात के लिए नबी बना करके भेजे गए, उस नबी ने फरमाया सबसे बड़ा अक्लमंद आदमी वो है जो मरने के बाद की तैयारी करता हो, जहन्नम से बचने की तैयारी कर। गौर कीजिए मेरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, अल्लाह के नबी ये बताइए, आप अभी बूढ़े भी नहीं हैं लेकिन बूढ़े की तरह दिखने लगे, अल्लाह के नबी क्या हुआ है? अल्लाह के नबी ने जवाब दिया था, लोगों क्या बताऊं, आई मेरे सहाबा क्या बताऊं, सूरह राद ने, सूरह नबा ने, सूरह गाशिया ने, सूरह हूद ने, इन आयतों ने और इन सूरतों को पढ़ने के बाद और जहन्नम की हौलनाकियों को पढ़ने के बाद मैं बूढ़ा हो गया हूँ। यानी जहन्नम और आने वाली ज़िंदगी को पढ़ करके मेरे चेहरे के अंदर से जो खूबसूरती थी ख़त्म होती जा रही है, जहन्नम को याद करके मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा सहाबा कराम की ज़िंदगी देखो। हज़रत उमर फारूक ने जब जहन्नम को सुना और जहन्नम के मनाजिर को पढ़ा, हज़रत उमर फारूक जो कि जन्नती सहाबी हैं, अल्लाह के नबी ने उसको जन्नती करार दिया था अपनी जिंदगी में। उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना व अली फिल जन्ना, अल्लाह के नबी ने इन सहाबा कराम को जन्नती करार दिया था। लेकिन हजरत उमर फारूक के बारे में आता है, हजरत उमर फारूक
जहन्नम को याद करके इतना रोया करते थे, इतना रोया करते थे कि आपकी आंखों के नीचे ये गड्ढे पड़ गए थे, ये आंसू गिर गिर के गड्ढे हो गए थे, इतना ज्यादा रोया करते थे। कौन? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु। इसी तरीके से हजरत अबू बकर के बारे में आता है, वो भी बहुत ज्यादा रोया करते थे। उस्मान गनी के बारे में भी आता है कि वो भी बहुत ही ज्यादा रोया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, ये सहाबा कराम है जिनको अल्लाह के नबी ने जन्नती की बशारत भी सुनाई थी, लेकिन इसके बावजूद ये जहन्नम को याद करके रोया करते थे और जहन्नम से बचने की तैयारियां किया करते थे। और हम और आप सुनते हैं बस, लेकिन उसकी कोई तैयारी नहीं, बचने की कोई तैयारी नहीं।